जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल and this is 527th episode of live analysis. So today being Sunday 6th of March 2022, we will do the weekly analysis for all asset classes. We will start by talking about the global markets, the geopolitical situation. Then we will touch base on your forex market, crypto markets, commodities, Nifty, Bank Nifty, and towards the end of the session, we will take as many stock queries as possible. Before I proceed further, let me just remind you that next training is scheduled on March 12th and 13th, which is next weekend or the coming weekend. And if it interests you, you can WhatsApp and you can join. Once you join, you will be a part of our Telegram group for a period of 3 months. So this is what I can offer right now. And चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. Okay, so what happened on Friday and what happened in last 2 days? So as usual, the war is still going on, and there is no respite on that front, which is pretty much expected. I've already said this war will be a precursor to many wars in future. So right now, Russia and Ukraine, they are in this war, and it will keep going on. Now, let us focus on price action. Keep aside the war news because that is something which is, I think, pretty much not factored in, but pretty much, it's a known element in the market. That is something which is not sort of in the realm of being unknown. It is a known risk right now. So when there is a known risk, markets definitely react to that element, and when it is no more unknown, then market tries to factor in. So right now, US market went down on Friday. We have not yet retested the bottom, but what is interesting is the European market. So जो European markets हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रैक कर चुके हैं. यूरोपियन मार्केट्स में नोटेबली जर्मन डैक्स की अगर बात करें तो मैसिव fall came on Friday of 5%, French market 5%, and UK market almost 3.5%. So in markets में बहुत ज़्यादा एक मैसिव डिक्लाइन हो चुका है, जिसकी तैयारी यहाँ पे हो रही थी पिछले 6 महीने में. इफ यू लुक एट दिस पोर्शन, once the market starts to hit a significant long term resistance, then this is what it does almost most of the time. It will try to make a new high and it will fail, and first round of drop, second round of drop, third round of drop. So couple of rotations happen. It makes a rounding top like this, and then eventually when the fall starts, it will just take couple of weeks to couple of candles, to fulfill the criteria. So right now, German DAX has reacted very negatively from the long-term pitchfork resistance, and all these while I was cautioning about the long-term distribution that has started to take place in the equity market. So I don't know if do you guys agree with me, because I don't see any message. अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो just let me know. So last time German DAX has reacted from the same resistance zone, and again we have reacted from the same zone with a almost a triple top. So right now there is another opportunity for 2-3% fall, but I think this is where German DAX should take support, क्योंकि historically 2019 का bottom ऐसे ही इसी ट्रेंड लाइन पे बना था, and all those things we have seen. So German DAX थोड़ा सा और डिक्लाइन कर सकता है, but ये बहुत ही significant level होगा. Now right now it is almost closed below the 200-day weekly moving average. Yeah, it is closed below the 200-day weekly moving average. That is something very, very nasty. uh, so these European markets, they are negative. अगर हम ACWI की बात करें तो 1.5% डाउन है, ठीक है, and it is still to make a new low. I think ACWI has reacted pretty much, you know, pretty much to the tune of expectation. I think इसमें बहुत ज़्यादा इस समय मैं decline नहीं देख रहा हूँ. Round about you can say 5% decline can come, but I think these levels are good for the time being. Why? Because
these markets, they don't move, they don't drop vertically, they always have legs, they move in legs. Now one more reason to expect one decline and one push up is because the moving averages, they need time to catch up. ठीक है. So moving averages में अभी काफी divergence है. If you look at the texture of the moving averages, they are pretty far from each other, and the price has deviated too much. So it's like kind of a elastic. The deviation has happened, and it calls for some bounce back. So there can be 2 3 4% decline, and again there should be bounce. Basically the moving averages needs to catch up with the price, और इसीलिए एक इसमें जो है अप मूव होना चाहिए. Now, what is the overall outlook on these equity markets? Emerging market ETF की बात करें तो $44.5 emerging market closed at a new low on Friday. So it has been in this downtrending pitchfork since last more than a year. And I think right now it is approaching some crucial panic levels. ओके, सो यहाँ पे अगर इस बाजार को संभलना है तो ये एक अच्छा जोन है. अगर यहाँ नहीं संभला तो बाजार में फिर एक बहुत बड़ी गिरावट जो है कंटिन्यू हो जाएगी. लेट मी रिमाइंड यू दैट आई हैव बीन अ प्रॉपर बेयर सिंस लास्ट 4 months. Probably I am the only bear in this market, sitting since the high of 18,600 made on Nifty, and telling you guys about each and every leg, how it will unfold, and the price and time calculations and all those things. Now recently I have dropped the bearish hat, and I'm trying to wear the bullish hat. Now why so? Because I believe the markets are very close to making a bottom, both price and time wise. So I think markets 15,800 is a pretty decent level. And my first target since this stop was made was the test of 233 moving average, which was originally here. At that time it was at 15,800, and that was my main level. But at that time it could not catch up, and it bounced. Next time it came at 16,500 level, and we have broken that. So we are pretty much close to a potential bottom. Now bottoming is a process. It may not be completed in one day. What I feel is these markets overall, I will come back to Nifty, but the overall these markets, they are either very close to make a bottom this week, this coming week. Okay, or if they don't make a bottom, then we are very close to seeing a capitulation move of lower circuit. ठीक है. So we are either very close to seeing a meaningful, significant bottom, both price and time wise, or we are in for a capitulation move, which means that the Nifty, Bank Nifty, whatever indices you are trading, they are on the verge of hitting a lower circuit. Now, lower circuit may not exactly come, but the theme will be at most a bearish theme. That is what I mean to say. So इस वीक में अगर आप नए नए बेरिश हैट आपने पहनी है, तो देन आई थिंक यू आर एट रिस्क. ठीक है, बुल्स हैव बीन एट रिस्क सिंस लास्ट 4 months. आई थिंक यहाँ पे एक रिवर्सल के बाद बुलिश होना या एक अजम्पशन पे बुलिश लेना ट्रेड, आई थिंक इट्स फाइन. So that's the outlook for the global equity markets. Am I a new bull? No, not at all. I am still a bear, but I feel for this leg, I think it is getting completion, and I think we should see one good rise in this week, probably after this week or sometime later in this week. Now, on Thursday, we have 10th of March, we have the UP election verdict that will come. I'm not sure if it will come on 10th or 11th, but very close to that. So market will start to factor in that local cues. That will be very important, and I think that is what markets are most likely to do. Market will try to pierce through some more on the lower side, but I think we are very close to a good price and time conjunction. So we should see one counterback rally that should start somewhere here 15,800 to 16,200. ये एक बड़ा एक बैंड है, और यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए. पहला इसका टारगेट होगा 17,050 का गैप फिल करना, विच इज़ हियर. प्रॉब्ली इट कैन डू टिल April or March. Last week this can probably be the mutual fund NAV adjustment rally also, and probably then we should end this bearish move with a final bottom somewhere in the month of April. Okay.
सो कैसे पोजीशन करेंगे, फॉरेक्स मार्केट की क्या सिचुएशन है, इस पे हम बात करते हैं। तो यूएस डॉलर जो है और यूएसडी आईएनआर, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग हेडेक फॉर द इंडियन मार्केट्स। Now, if I look at the chart of US dollar, we are getting threatened for a big breakout in the US dollar. Okay, so जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी एक टाइट कंजंक्शन यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ से अगर यूएस डॉलर ब्रेकआउट देता है तो इससे काफ़ी ऊपर की रेंज इसकी ओपन हो जाएगी, एंड इट हैज़ लॉट ऑफ स्कोप टू गो ऑन द हायर साइड। एट द सेम टाइम अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे की गिरावट करता है तो एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। आई डोंट सी यूएस डॉलर कमिंग डाउन एनी टाइम इन नियर फ्यूचर। बहुत ही डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट इन द सेंस कि इवन इफ इट कम्स इट हैज टू बी रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव टू negate the bullish undercurrent. So I don't think that is going to happen unless you see couple of things. Number one, if the US Fed backtrack. Number two, if the war stops or something happens over there. So ऐसा कुछ अगर होगा तो ठीक है, we are already making a or we can say, we can assume that it will make a head and shoulder something like this, and probably it will bottom out. Now I have one very interesting analysis that I did yesterday, and that is the monthly chart of the US dollar. If I look at the monthly chart of US dollar, what it is doing is it is in a long term distribution. When I say long term, it means over a span of a decade, which is 10 years. Okay, so I see the US dollar getting distributed over the long term cycle, and that is very much clearly evident with the way US administration is running both in the geopolitical circles and in the monetary policy circles. So US डॉलर में अगर हम देखें तो एक मीनिंगफुल बॉटम जब बनता है लाइक 2018, over there, these equity markets, they have also pretty much timed themselves with the cycle of the US dollar. Okay, so यहाँ भी हम देख सकते हैं कि US डॉलर जो है एक रिलेशन इक्विटी मार्केट के साथ थोड़ा लैग होगा क्योंकि मंथली स्केल है, but pretty much the longer term remains intact. Now, interestingly, we are in the month of March, and in 2020 US dollar peaked in the month of March. So maybe probably अगर कुछ क्यूज वगैरह अगर शांत होते हैं, सो मे बी वी कैन फेस सम रेजिस्टेंस एंड इट कैन स्टार्ट टू कम डाउन। हालांकि अभी तो ट्रेंड पूरी तरीके से बुलिश है। फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा वीक जो करेंसी था वो था आपका यूरो यूएसडी, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इट इज़ द मोस्ट बेरिश पेयर, एंड लुक एट द ड्रॉप दैट केम ऑन फ्राइडे। इट्स अ मैसिव ड्रॉप, वेरी वेरी बिग ड्रॉप कमिंग ऑन फ्राइडे। और जो यूरो आईएनआर है उस पर हम बेरिश थे और बहुत ही सॉलिड उसमें जो है ट्रेड हो चुका है। जीबीपी आईएनआर अगेन बेरिश है और उसके शॉर्ट पोजीशन तो होल्ड रखे हैं हमने। सो जीबीपी यूएसडी, that was also very much down. So these pairs are getting thrown into dustbin. USD INR स्पाइक अप कर चुका है। USD INR जो है 76.5 तक का रेंज जो मैंने आपको थर्सडे रात को दिया था, pretty much it is going over there. So थोड़ा सा फॉरेक्स पे अब बात इसलिए करेंगे क्योंकि आपका इक्विटी मार्केट की बॉटमिंग फॉरेक्स मार्केट से डिसाइड होने वाला है, स्पेशली इंडिया में। ओके, now if we look at the chart of this USD INR, if I look at my pitchfork chart, one thing is very certain that it won't be easy for USD INR to sustain at higher levels. Higher levels यानी near about say 77, इतना आसान नहीं होगा इन रेजिस्टेंसेस को क्लियर कर पाना। सो टिल 77 इट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। हो सकता है मंडे को शायद 77 पैनिक में हिट करा दे, या तो ट्यूसडे को हिट करा दे। जो ऑल टाइम हाई है दैट इज ऑलमोस्ट 77.10 पैसे। ठीक है, सो प्रिटी मच वी आर रीचिंग ओवर देयर, हार्डली हाफ अ परसेंट और 1% इज लेफ्ट। सो आई थिंक यूएसडी आईएनआर टू बिगिन विद इज डेफिनेटली बुलिश फॉर दिस वीक। हालांकि मैं ऊपर के स्तर पे बुलिशनेस को प्ले नहीं करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू fade this up move, but very very cautiously and with a very small position size. Now forex market is a very different market. It's a market for strategic traders. यहाँ पे आपको जो है पोजीशन साइजिंग, सीजनैलिटी, हेजिंग, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर सकते हो तो यू कैन लिटरली विन द फॉरेक्स मार्केट। मैं
NSE फॉरेक्स फ्यूचर्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। सो what is my expectation here? See, the USD INR is dependent on what? Is dependent on the mother currency, which is your the US dollar, ठीक है। अब यूएस डॉलर स्वयं एक रेजिस्टेंस पे है, तो अगर ये रेजिस्टेंस को स्वयं अगर ब्रेकआउट करेगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो यूएसडी आईएनआर है इस पे एक थ्रस्ट मिल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस फैक्टर की वजह से, इस लीवर की वजह से ऊपर जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका वॉर न्यूज कंटिन्यू रहेगा तो ये भी एक डेप्रिसिएशन के लिए अच्छी बात है, तो ये भी एक पुश अप करेगा ऊपर में। तीसरी चीज है कि आपका क्रूड ऑयल विच इज द मेन वरी फॉर इंडिया, 85% इम्पोर्ट बिल आपका क्रूड ऑयल पे है। हालांकि लेट मी टेल यू, थोड़ा सा इसमें भी लोग मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेट मी टेल यू कि क्वार्टरली प्राइस जो है क्रूड की $75 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो मेन जो करेंसी फ्रंट पे क्रूड का इम्पैक्ट आपके ये एक दो हफ्ते से नहीं आता है, आपका ये क्वार्टरली बेसिस पे आपका बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्पैक्ट होगा। तो क्वार्टरली 75 के ऊपर सस्टेन करने के लिए अभी एक महीना कम से कम टाइम है, और हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ना हो, बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा बाद में आएगा। सो आई थिंक देर आर थ्री फैक्टर्स दैट विल determine where USD INR will go. The first factor is the dollar itself. Second is the war news or the sentiments, you can say. Third is the crude. So I think अगर crude नीचे जाता है, क्रूड थोड़ा पॉज लेता है, थोड़ा एक 5-10% हील करता है, तो थोड़े ये जो फैक्टर्स हैं इनका थोड़ा सा एक नेगेशन हो जाएगा, एंड प्रोबब्ली दैट 77 विल स्टिल होल्ड। नाउ द वॉच डॉग इज द आरबीआई। आरबीआई जो है बैठा हुआ है, ओके, एंड आरबीआई इज प्रोबब्ली वाचिंग हाउ दीज थ्री वेरिएबल्स वर्क इन द कमिंग वीक, एंड हाउ द यूपी इलेक्शन इज ऑल्सो देयर। सो थोड़ा सा ये भी एक पॉलिटिकल भी एक छोटा फैक्टर है, क्योंकि यूपी इलेक्शन में अगर सपोज हमारे टोटी चोर अगर आते हैं तो यूएसडी आईएनआर डेफिनेटली डिप्रिशिएट करेगा, 50 पैसे ऊपर भाग जाएगा टोटी चोर की वजह से। सो आरबीआई इज सिटिंग ऑन द एज, एंड इट विल सी हाउ दीज वेरिएबल्स आर अलाइनिंग, हाउ दे आर वर्किंग with respect to each other, and then they will try to hold the currency. There is one more factor which I am noticing, is that the RBI probably two things will happen in the USD INR market in near future. Number one, if India wants to actually capitalize on this geopolitical situation, if India wants to seek a leadership role in this world going forward, it definitely needs to be a export competitive economy. Now, if you observe what has happened over the last 7 years, the floor for USD INR has been purposely shifting up. Okay, so अब देखो तो 77 एक बॉलपार्क फिगर रेजिस्टेंस रहा है पिछले काफी सालों से, बट जो बेस प्राइस है अगर आप देखते जाओगे तो फ्रॉम 70, 71, 72 इट इज इंचिंग हायर। Okay, so I think RBI will find eventually comfort in settling the USD INR at a round figure at a psychological level of 75 rupees. I think that is going to be the norm in next 2-3 years. तो कहने का सिंपल तात्पर्य यह है कि इस वीक में करेंसी मार्केट को ट्रेड करना आसान नहीं होगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दी ट्रेडर्स टू मैनेज करेंसी पोजीशंस अगर आप सिंगल करेंसी करते हो। अगर आपको चारों पेयर्स को खेलने आता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ चार पेयर्स कौन से हैं और क्या रेंज होगा, क्या उनकी स्ट्रेंथ है इस वीक के लिए, लेट अस सी। एक बार जेपीवाई को देखते हैं, जापानीज येन को। सो जेपीवाई जो है ये बहुत ही ट्रिकी मामला कर रहा है, बिकॉज जेपीवाई is sort of not going with the US dollar, or probably it is waiting to explode. ये अभी 50-50 सिचुएशन है, ओके, राइट नाउ। सो ये जो पेयर है, जो जेपीवाई आईएनआर पेयर है, ये बहुत ही ट्रिकी पेयर है बॉस, क्योंकि या तो ये गिरेगा तो तगड़ा गिरेगा, या तो ये बढ़ेगा तो ये सबसे ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। सो आउट ऑफ योर 4 पेयर्स, first pair is your first pair is your simple USD INR. So what is the range for this week on USD INR? See, on the downside,
I believe you have a very strong support created at 75.5 rupees. On the higher side, you will have, I would say 76.75 as a midpoint, with a very easy chance to reach the threshold of 75, sorry 77.25.5, ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके मैक्रोज ऐसे हैं, प्लस इलेक्शन वगैरह का भी रिजल्ट है। ठीक है, so you can consider the 76.75 as a sort of a pivot. If it is still resisting this, then definitely you can expect 1 rupee move over here. If you are shorting this rally, then keep in mind it can go till 77.5 considering all these macros. So आप अपनी पोजीशन की एवरेज प्राइस वैसे आपको मेंटेन करनी होगी, बनानी होगी, या फिर आप लेवल के हिसाब से काम कीजिए कि 76.5 के ऊपर इट इज in an uncharted territory. USD INR will hit all time high. So USD INR hitting the all time high, with Nifty correcting towards the 200 DMA. I don't know what will going to happen. So ये USD INR पे है, बायस एकदम न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड जो है मामला जा सकता है। Everything will depend on how RBI intervenes. Second, आपका जो यूरो आईएनआर है, इस पे मैं बहुत बेरिश हूँ, और हालांकि मैंने अपने शॉर्ट्स बुक कर लिए हैं, बट आई थिंक इट इज स्टिल बेरिश। बट फ्रेश शॉर्ट इसमें मत करना, ये अच्छा पेयर है शॉर्टिंग करने के लिए, बट ऊपर के लेवल्स पे। सो आई थिंक इसमें जो पुराना जो 84 टू 86 है, दैट विल बी मेंटेन। एंड इफ यू गेट गुड बाउंस, पेशेंस रखो, 2-4 दिन में अच्छे बाउंस मिलेंगे, तो आप इसको जो है शॉर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही बेरिश है। आई थिंक अगर यूएसडी आईएनआर भी तुरंत गिरने लगा तो इट कैन गो टिल 83 ऑल्सो। आई थिंक इट शुड गो टिल 83। थर्ड जो है ये आपका जीबीपी आईएनआर है, ब्रिटिश पाउंड। सो इसका सेम रेंज रहेगा, राउंड अबाउट 100.5 टू 102.5। ओके, विद अ बेरिश बायस वी आर ऑलरेडी शॉर्ट। सो ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, और ये तो ट्रेंड के हिसाब से चलेगा। और चौथा आपका है जेपीवाई आईएनआर, जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, इसका 50-50 है। सो रेंज विल बी दैट सेम। आई थिंक 64 इज अ बेस एंड इट कैन गो टिल 67। ओके, सो फिलहाल यही अपडेट्स है, ज़्यादा कुछ इसमें कह नहीं सकता। मे बी टुमारो वी कैन गेट सम मोर क्लूज अबाउट द यूएसडी आईआरआर एंड ऑल दिस मार्केट्स। ठीक है दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। I think this is a rare channel on YouTube that covers macros in each and every analysis. Okay, somebody has messaged cover Nasdaq also. So Nasdaq देखिए 13,840 की closing है. So Nasdaq, I think Nasdaq has already made a bottom. I don't see Nasdaq going much deeper. I think bottom is made, but the reversal on the upside that is still due. ठीक है, so price wise I think correction जो है इसमें हो चुका है. Okay, let us talk about the कमोडिटीज मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तहलका हो चुका है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कॉपर, बिकॉज दीज मेटल्स इफ़ यू रिमेंबर, इसमें आपको क्लियर कट मैंने बताया था कि शॉर्ट तो प्लीज़ गलती से भी मत करना। दीज थिंग्स आर गोइंग टू एक्सप्लोड मैसिवली गिवन दी वॉर सिचुएशन, और ये देखिए कि पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुके हैं। सो कॉपर गोइंग लाइक क्रेजी, निकल गोइंग क्रेजी, एल्यूमिनियम 260 से 310 हो चुका है, लेड 180 से 190 हो चुका है, जिंक 340 पे आ चुका है। जिंक देखो, जिंक आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें मैं बुलिश था, एंड जिंक इज गोइंग टू 345 अगेन। जिंक में बहुत रैली हो सकता है। सो मेटल्स में कोई ट्रेड मैं नहीं दूंगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी इन अ बिग रेंज। आई डोंट थिंक कि कोई मैनेज कर पाएगा, सो इट इज़ बेस्ट लेफ्ट। नेचुरल गैस अगेन न्यू हाई की तरफ जा रहा है। आई थिंक एनजी जो है इस समय जैसे ही 390 तोड़ेगा, आई थिंक एनजी हैज ऑल द स्कोप टू मूव टिल 450। आफ्टर ऑल, व्हाई शुड क्रूड हैव ऑल द फन, राइट? सो नेचुरल गैस जो है एक मेजर रेजिस्टेंस पे यहाँ पे पहुंच रहा है। सो 390 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। वंस 390 इज क्लियर्ड, आई थिंक एनजी is going to have its own time. I think NG can go very easily 450 and towards maybe 500 also to complete the new all-time, not new all-time high, but the recent all-time high. So no trade from my side. Crude oil जो है 8600 पे है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल जो है 9100 तक जा सकता है। बहुत लोग क्रूड में शॉर्ट कर रहे थे, सब बर्बाद हो चुके हैं। सो इनसाइड वीक बना है क्रूड ऑयल में, सॉरी इनसाइड डे बना है। अगेन इट कैन, हु नोज, इट कैन एक्सप्लोर टुवर्ड्स 9200।
So be careful on these commodities. Gold, I don't know why people are shorting gold. I mean, if you have even 1 gram of brain, why would you like to short gold in a war like situation? ये चीज मैं हर रोज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गोल्ड आप 51,600 के ऊपर तेजी है बॉस, 53,600 के लिए 53,600 तक गोल्ड जा सकता है बड़े आराम से, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर शॉर्टिंग. सो इसमें भी बुलिशनेस है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन. 39,000 पे ट्रेड कर रहा है. सो बिटकॉइन इज मेंटेनिंग दैट सेम रेंज, ऊपर में 46, नीचे में 36. आज भी 38,000 का बॉटम लगा है एंड आई डोंट सी बिटकॉइन गोइंग एनीवेयर. आई थिंक बिटकॉइन इसी में रोटेट करते रहेगा जब तक कि थोड़े और क्लैरिटी ना आए. इथेरियम 2635 पे ट्रेड कर रहा है and ethereum I think is going to respect that same 2400 as a base and 3200 as a resistance. So क्रिप्टोज में कुछ खास नहीं है आज. सारे जो क्रिप्टोज हैं इसमें पूरी तरीके से स्क्रीन रेड है. क्रिप्टोज में आज जो है एक प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ वगैरह आप कह सकते हो. एंड आई थिंक क्रिप्टोज में थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ टू गेट सम गुड हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट सेटअप. आई थिंक दे विल कम. देर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट आई एम ट्रैकिंग एंड इसमें मिलेंगे हमें अच्छे एक ट्रेड्स मिलेंगे. बिटकॉइन के बारे में थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर बता दूं तो बिटकॉइन मैं समझता हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 35,000 से आपका 37,000 का ये जो स्लैब है. सो आई थिंक बिटकॉइन इज स्टिल सर्वाइविंग. ठीक है, ये मरा नहीं है अभी तक. आई थिंक ये सर्वाइव कर रहा है. द ओनली थिंग इज इफ वी मेक अ बेस ओवर हियर कि 3 महीने का इनसाइड बार है. If we sustain, I think then very easily again we can go all the way to 70,000 somewhere in next 6 months or 1 year. So I think still it is okay. What I think is long term Bitcoin doing is I think it will remain in this range of say 30,000 to 70,000 till uh, another 1 year. ओके, मुझे लगता है कि ये जुलाई 2022 और अगस्त 2022, क्योंकि जिन्हें क्रिप्टो का नॉलेज है आपको पता है कि जुलाई के बाद से जो है बिटकॉइन में एक बुलिश सीजनैलिटी होती है. पर्टिकुलरली अगस्त से आपका नवंबर तक जो छोटे जो कॉइन्स हैं अपने उनमें एक ह्यूज बुलिशनेस आता है. सो आई थिंक व्हाट दिस बिटकॉइन इज डूइंग इज इट इज मेकिंग अ फ्लैग here and it is waiting for that price and time conjunction to come. So I think we can have one more round of this and probably then either we are going massively on the higher side or we are going to capitulate again all the way to 10,000 and 9,000. So आने वाले 1 साल में मुझे नहीं लगता बिटकॉइन कहीं और जाने वाला है. नीचे में आपका 30,000 फ्लोर है, ऊपर में 70,000 72,000 आपका रेजिस्टेंस है. वी माइट सी वन रोटेशन ऑन द अपसाइड, वन रोटेशन ऑन द डाउन साइड. मे बी 6-6 महीने का एक एक स्लैब हो सकता है एंड देन द फाइनल मूव इधर टुवर्ड्स 1,50,000 और अगेन कमिंग बैक टू दी 10,000. सो जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं आई थिंक आज के दिन मैंने आपको बहुत अच्छी एक चीज़ इसमें बताई है, the long term story of the Bitcoin. Okay, let us talk about Nifty and then we will take the stock queries. दोस्तों एक और बार रिमाइंड कर देता हूँ कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है, now we are left with only 2 training. It is the coming weekend and one training will happen in the April first week or April second week. That's it. उसके बाद कोई भी ट्रेनिंग मेरे साइड से नहीं होगी. So you can register if you are interested. Let us talk about Mr. Nifty. So last time what was the discussion? The discussion was that we are heading towards 16,200, 16,000. We are almost going to complete this price and time symmetry. I'm expecting market to bottom out somewhere by 10th of March in a temporary format, stage a counterback rally, and then again come down to the same level sometime in late April, mid-April, and complete the corrective leg and then stage some meaningful counterback rallies etc. ठीक है. सो इसेंशियली ये व्यू अभी भी इसमें होल्ड है. अभी भी ये व्यू के साथ ही मैं जाना चाहूँगा. और इस वीक हम ट्रेड कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान देना है, इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं. फ्राइडे के दिन क्या हुआ? फ्राइडे के दिन देयर वाज अ बिग गैप डाउन ओपनिंग. Okay, so Friday we saw a big gap down opening. We made a new marginal low at 16,100. We still
supported the 16,200, which is the floor. We bounced back very nicely, filled, came very close to retest the previous day low, and again there was a rejection. Okay, now Friday global cues were negative. So with that negative global cues, and if by tomorrow morning the global cues remain negative, then markets will obviously open gap down, and it will try to open below 16,000 just to take out all the longs, right? So that will be a very good way to flush the market, flush and rinse the market. So what will be weekly approach, किस लेवल पे हमें ध्यान देना चाहिए वीकली में, ठीक है? इसके बारे में एक चीज हम डिस्कस करते हैं. लेट अस सी, इफ आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग, if I just keep a simple layman कैंडलस्टिक. सो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दोस्तों कि आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ sort of a wide range bar. What is a wide range bar? How it behaves? All these I will explain in the price action training. So what we see is a flush on the lower side and a counter back rally. If it goes directly up, then we see a flush on the higher side and a counter back rally here. Okay, just like this. ठीक है? सो यहाँ पे इस वीक के लिए मेरा जो दो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प है. पहला जो लेवल है वो है नीचे से ऊपर के लिए टेक्निकल गेम खेलने के लिए. ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग ट्रेंड की बातें कर रहे हैं पिछले 4 महीने से, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रेंड ब्रेंड अभी छोड़ दो थोड़ा और टाइम के लिए. इतने महीने छोड़ना चाहिए था, बट अभी भी थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो. वाई? बिकॉज नाउ इट्स नॉट अ गेम ऑफ अ ट्रेंड, it's a game of playing the support resistance, and these markets with wicks near 30, they are giving you so big swings. Why do you care about the trend, right? निफ्टी आपको इंट्राडे 400 पॉइंट के स्विंग दे रहा है, ट्रेंड का लेके क्या करना है, अचार डालना है. सो फॉरगेट अबाउट द ट्रेंड, बी अ स्मार्ट ट्रेडर, प्ले द करंट swings, and once the market bottoms out eventually, then वो ट्रेंडिंग फेज आएगा, उस समय आप ट्रेंड फॉलो करना. अभी बी अ स्मार्ट ट्रेडर. नाउ गिवन दिस कैंडलस्टिक पैटर्न, आई थिंक इस मार्केट में हमें दो लेवल पे ध्यान देना है. लेवल्स क्या है? सी, पहला जो लेवल है वो है एक साइकोलॉजिकल 16,200 का एक लेवल है. ओके, नाउ इफ द हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स who initiate a trend or a drive, if they are in the mood to exit their shorts finally, if they are in a mood to consider that okay, for the time being this down move is done, you will notice a pattern, or you will notice a behavior that 16,200 is being defended on closing basis. ठीक है, 16 डिफेंड, ये 200 डिफेंड हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे. that will be a sign that yes, these guys are exiting their shorts. See, I don't see any open interest or any all those things, because I think they are the most stupid thing to watch. What you need to watch is how the prices are interacting at key levels. Okay, and start thinking in terms of higher time frame trader and lower time frame traders. Lower time frame trader कौन होते हैं? डे ट्रेडर्स होते हैं, एक्सपायरी ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेंड के बीच में प्ले करते हैं. हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो ट्रेंड की शुरुआत करवाते हैं. ठीक है, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं लग जाती है, ये बंदे हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स होते हैं. सो दीज आर द गाइज हु विल ड्राइव द ट्रेंड, and these are the people who will trade the support resistance game. So 16,200 will be defended on closing basis if the higher time frame traders are in control of the market. If they are in control of the market, that means we are due for a counter back rally. Okay, now if this counter back rally is going to come, what is the first behavior it will do? The first behavior is to break above this declining trend line, and to break that they need to cross a significant level, I would say 16,600. ठीक है, 16,600. तो 16,200 इस लेवल को हमें क्रिटिकली वॉच करना है. फिर है 16,600. ओके, ये जो लेवल है 16,600, ये ट्रेंड के एंगल से बहुत ही क्रूशियल है. ट्रेंड के एंगल से, तो अगर बुलिश ट्रेंड डेवलप होना है तो 16,200 की अहमियत नहीं है, 16,600 की अहमियत है.
क्योंकि सपोर्ट्स आर मेंट टू बी ब्रोकन इन अ डिक्लाइनिंग मार्केट, बट इफ द मार्केट decline is coming to an end, resistances must be broken. That is the objective, and that is the sign, that is a behavioral change that we need to see. सो 16,200, 16,600, ठीक है। अब अगर 16,200 पे बॉटमिंग नहीं है तो पैनिक लेवल है 15,800 से 15,925 के रेंज में, ठीक है। और 16,200 क्रॉस होता है तो 16,600, एंड 16,600 क्रॉस होता है तो फिर हमारा 17,100 का ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसे ट्रेड कैसे करेंगे? नंबर वन, सो द वीकली मेक और ब्रेक लेवल या ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल जो हम रेफरेंस लेके चलते हैं, इसे मैं लेके चलना चाहूंगा 16,200 पे। 16,200 के नीचे जब तक मार्केट है, मार्केट में 15,800 की एक मूव आ सकती है, बड़े आराम से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाउएवर, इस मूव में प्ले करना, और अगर आप फ्रेश बेयर हो, आई थिंक दैट विल बी सुसाइडल। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज मार्केट जो है दोस्तों प्राइस वाइज करेक्ट करता है और मार्केट टाइम वाइज करेक्ट करता है। प्राइस वाइज आई थिंक मार्केट करेक्ट कर चुका है। मार्केट अब क्या चाहता है कि मैं बार बार नीचे गिरूं ताकि जो पहले के जो बायर्स हैं इनका मनोबल टूट जाए, दे गिव अप एग्जैक्टली एट द रॉन्ग टाइम एंड एट द रॉन्ग प्राइस, ओके। और जो लोग शॉर्ट नहीं कर पाए थे वो अब देख रहे हैं कि यार रोज मार्केट नीचे गिरता है, रोज बार बार इट इज गिविंग अप द गेन्स, दे विल बी टेम्पटेड टू क्रिएट फ्रेश शॉर्ट। सो इन दोनों का जो संगम है, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मार्केट यहाँ पे सी बना सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। सो 16,200 के नीचे मार्केट बेरिश तो रहेगा 15,800 के लिए, बट इसे प्ले करना थोड़ा कठिन है। अगर आप इसको प्ले करते हो तो काइंडली ट्रेड विद स्टॉप लॉस, राइट, एंड बी वेरी केयरफुल। Above 16,200, first target will be 16,600 and second target will be 17,100. You can definitely go longs with this as a stop loss and these two as a targets, ठीक है। So I think that's all on the weekly analysis of Nifty। कल इंट्राडे के लिए भी मैं 16,200 225 को ही एक मॉब लेवल कंसिडर करूंगा। इंट्राडे लेवल अगर देना चाहूँ तो ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल डेफिनेटली 16,225 आप कह सकते हैं, 200 225 230 ये है। नीचे के तौर पे पहला टारगेट है 16,080, इस लेवल पे ध्यान देना, 16,080, और दूसरा होगा 15,925। अगर 15,925 आता है तो भी रेस्ट अश्योर्ड कि यहाँ से एक स्पाइक डेफिनेटली आएगा, भले ही क्लोजिंग पे वापस गिर जाए, बट 15,925 से एक स्पाइक डेफिनेटली आएगा। क्यों आएगा अब ये सब बाद में बताऊंगा। 16,225 के ऊपर अगर बाजार चलना शुरू करता है तो 16,480 ये क्रिटिकल लेवल है, एंड समवेयर हियर वी शुड डेफिनेटली गो। वंस 480 इज डन, देन योर 16,600 इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। सो ये कल के लेवल्स हैं, ये वीकली पर्सपेक्टिव है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो को रिवाइंड करके 4-5 बार आप सुनेंगे तो आपको यू नो everything will be very clear to you. Also, one more interesting thing to observe here is, last time I told you that markets will not bottom unless we get a, is there a sound problem? Somebody is messaging that आवाज नहीं आ रही। अगर आवाज आ रही है तो just आप जो है जय श्री राम लिख के बता दीजिए। The markets will not bottom unless you have a what? A positive divergence, okay. Now, why a positive divergence here? Because I rarely look at indicators, but here we need a positive divergence. And on Friday, I think, let me open a simpler chart. I think on Friday we are getting a positive divergence. You see, on closing basis, even if I look at the line chart, the line chart has closed exactly at that same level, which means intraday we have broken, which means we have made a new low. But the RSI first time in this entire decline that started from 18,300, we are making a positive divergence. So that is again a footprint, a sign that somebody is absorbing the supply. देखिए, ये मैं कहता हूँ दोस्तों,
आप लोग ओपन इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, just a waste of time. You develop your skill to understand the footprints of larger players. That is how you evolve in the market. That is how you actually gain freedom. Okay, freedom from indicators. ठीक है, let us talk about bank nifty and let us check the quarterly charts. तो quarterly charts इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप पिछले 6 महीने से जुड़े हैं तो आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम हमने जुलाई क्वार्टर यानी लास्ट ईयर जुलाई क्वार्टर पे जब सेंसेक्स 61,000 हिट हुआ तो उस टाइम मैंने आपको फर्स्ट टाइम, आज से आई थिंक कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आई शोड यू दिस चार्ट, आई रिवील्ड दिस चार्ट फर्स्ट टाइम इन पब्लिक एंड आई very in a very elaborate manner I explained why these 18,000 to 19,000 will be a big headache for the market because of these long term quarterly charts. Plus we had a long term RSI resistance also here, and that has proven to be correct. We hardly sustained above 18,000 and we have started to come down now. uh, Going forward, even if markets bottom and stage a good rally, as you can see, uh, the potential on the upside is limited. तो कहने का मतलब ये है कि अपसाइड्स ये जब आएंगे बाजार में तो ये अगेन एक लिमिटेड अपसाइड रहेंगे. सो दिस मार्केट व्हाट इट इज प्लानिंग टू डू इज इट इज प्लानिंग टू undergo a long term distribution with a sectoral theme, okay, to suck in the money of all the people who came here आफ्टर कोरोना एंड यू नो जो होता है ना कि 90% का पैसा 10% के पास जाएगा, दैट सेम थिंग विल हैपन हियर. सो यहाँ पे 90% केम, यहाँ पे दे विल बी चॉप्ड ऑफ. सेक्टोरल रोटेशन थीम होगा, कभी मेटल्स क्रेजी रैली करेंगे, कभी पीएसयू बैंक्स, एंड मार्केट का टेक्सचर ऐसा होगा कि रिटेलर्स मोस्टली ऊपर ऊपर में हर सेक्टर्स में फंसते जाएंगे एंड मार्केट इसी तरीके से लार्जर स्विंग्स में करते रहेगा एटलीस्ट फॉर मे बी 2-3 क्वार्टर्स और हु नोज फॉर हाउ मेनी टाइम. ओके, सो इस कॉन्टेक्स्ट को प्लीज भूलिए मत, क्योंकि ये चीज अगर आप भूलेंगे तो आप फिर ट्रैप होते जाएंगे. चलिए, लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी एंड देन वी विल कम टू दी स्टॉक क्वेरीज. सो बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है? 34,000 का सिग्निफिकेंट लेवल हमने बात किया था, but I was surprised on Friday the way it broke that 34,800 level, क्योंकि ideally ये बहुत अच्छा एक support zone है. Okay, if you this chart will look very messed up, but once you understand how the pitchfork and all these things work, you will realize the significance of this zone. Okay, so uh, यहाँ पे 34,000 इज अ वेरी क्रूशल सपोर्ट. मैं आपको कुछ दो लेवल देता हूं पैनिक के लिए. पहला है 33,700 एंड दिस 34,100 जोन. ये जो जोन है, अगर आपको रिस्क है, इश्क है टाइप के बंदे हो आप, ठीक है, इस जोन में आपको बैंक निफ्टी लॉन्ग करना ही चाहिए. ओके, you can have some wider stop loss, but this is the place where most likely panic should be done, and at least you can stage a 2 to 3,000 points rally till 37,000. okay, so if you are that sort of a person जो रिस्क और इश्क दोनों लेके चलता है, तो आई थिंक ये अच्छा प्लेस है. ठीक है, इश्क लड़ाने का तो यहाँ पे लड़ाओ, स्टॉप लॉस के साथ करना, नहीं तो लड़ जाओगे. And that is how you can play. Secondly, if you are a technical guy, then you don't need to venture out like this. You have a very simple game plan. See, this is the most obvious place uh, on the chart. ठीक है, सबसे obvious place कुछ ये इस तरीके का है. Now if you draw a trend line in some other way, you will see this coming at a support. If you draw in this way, you will see it breaking down, and on the left hand side there is a very strong support here. Yani give or take, we are at a crucial level. Now if you want to plan for a long side in at such a place with this candle, then there is a very simple approach. Weekly level पे आप ऐसा कर सकते हैं कि, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, 33,700 इट्स अ पैनिक लेवल, 34,100 ये इन्वेस्टर बाइंग जोन है. ठीक है, 35
400 is the most important pivot. Above this, it's a full bullish market for 37 200 मिनिमम. तो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं. दीज आर क्रूशियल लेवल्स. ठीक है, ये बार बार मैं बता नहीं सकता. सो what will be weekly make or break level for bank nifty? See, I think I will go with, I would say, a previous day closing. Okay, so I think 34,800 is a crucial level. Below this, bank nifty deserves to go till 34,000 and panic 33,700. Okay, and this is a value buying area for bank nifty, of course, with a stop loss. But याद रखिए कि बुलिशनेस यानी जो ट्रेंड है ये इसके ऊपर तेजी में कन्वर्ट होगा. ओके, so 34,800 must be crossed on closing basis to to create the bullish trend. इसके ऊपर पहला टारगेट होगा 35,400 and second target will be fill up of this pending gap over here, which is say 37,200. सो इस तरीके से बैंक निफ्टी को हम डील करेंगे, लेवल के हिसाब से काम करेंगे. बाइंग जोन आपके सामने है. ठीक है, और 34,800 के ऊपर इट्स गुड बुल्स मूव. ठीक है, दैट्स ऑल. बैंक निफ्टी पे यही लेवल है. कल के लिए इंट्राडे अगर मैं बताऊं तो बहुत आसान है. जो क्लोजिंग प्राइस है 34,376 फॉर टुमारो सेशन, go with the opening low as a make or break level, which comes down to 34,280. So for tomorrow the mob level will be 34,200, you can say, और 250 sort of level. ठीक है, इसके नीचे सेम 33,800 sort of level, and above this it's all bullish for 34,800 and 35,200 sort of a level. ठीक है, चलिए, आई थिंक दैट्स ऑल. आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ. 45 मिनट्स हो चुके हैं बकबक करते हुए, और चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब हो नहीं रहे हैं. सो लेट अस वाइंड अप द सेशन. अगर कोई स्टॉक क्वेरी है तो आप डिटेल में स्टॉक क्वेरी पूछिए. जस्ट डोंट टाइप द नेम, because I think at this juncture I will take only super chat queries, because यहाँ पे बहुत ही सटीक एनालिसिस की जरूरत है. Why? Because as I said, markets are either very close to make a bottom this week, or there is a capitulation which is going to happen, right? So you need very precise reply. So please ask your queries in a elaborative manner so that I can help you. अगर हम स्टॉक्स की बात करें एक ब्रॉडर मार्केट्स पर्सपेक्टिव, तो आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, आई थिंक दे कैन मेक अ डबल बॉटम स्ट्रक्चर. More or less they are done and dusted. Few good things and few bad things. Private bank index, it is at a massive support, but again it needs to reverse. ठीक है, so प्राइवेट बैंक इंडेक्स जो है ये थोड़ा सा कंसर्न है मेरे लिए, बट अगर ये थोड़ा सा अपने आप को पुशअप कर दे तो बहुत अच्छा होगा. what I don't like about this is the massive head and shoulder. It is looking really bad, and ये बहुत ही खराब चीज है. Okay, now private banks, they are looking very bearish. Okay, and I believe maybe अगर शॉर्ट टर्म में बच जाए तो भी फ्यूचर में, in future there will come one leg which will be very nasty for private banks. Maybe if you save here, maybe then you can get some rally heading into July, etc. And maybe later on we can get some nasty drop. So private bank में आने वाले लाइक 6-8 महीने में, और स्पेशली अगर एक कोई रैली हो जाती है उसके बाद, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है. मे बी कपल ऑफ रीजंस, मार्केट जो शायद एंटिसिपेट कर रहा है, मे बी सम स्कैम इज गोइंग टू कम आउट इन नेक्स्ट 3 to 6 months of some private bank or some person involved in the private bank, or maybe the markets are expecting problems on the macro front. So macro front में जब problems होंगे, देखिए प्रॉब्लम्स दो जगह हो सकते हैं, या तो मैक्रो फ्रंट पे होगा या तो आपके बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में होगा. फाइनेंशियल सिस्टम में होगा
तो फिर भी ठीक है, बट अगर मैक्रोज में प्रॉब्लम होगा तो प्राइवेट बैंक्स की सबसे ज्यादा बैंड बजेगी वर्सेस द पीएसयू बैंक्स। इसीलिए पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो है ये अभी भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आई थिंक वी आर अप्रोचिंग सम मैसिव सपोर्ट जोन। सो अगर एसबीआई आपको 440 के आसपास मिलता है तो कैश में बिंदास उठा लो। 10-20 रुपए का स्टॉप लॉस बाद में देखा जाएगा। लैप अप द गुड काउंटर्स। सो पीएसयू बैंक्स आर स्टिल poised very nicely. I think PSU bank should bottom out first and PSU bank can stage one very nice rally. तो SBI being the largest bank and again वो 440 से 570 का साइकिल है, तो SBI will be first preference over there. आईटी थोड़ा सा मुझे बॉटमिंग सॉर्ट ऑफ लग रहा है। आई थिंक आईटी में बॉटमिंग इज वेरी क्लोज, सो आई विल बी वेरी चूजी एंड पिकी, बट आई थिंक more or less we are going to bottom out soon in IT. When I say bottom out, I don't mean a fresh bull run. I think IT has done their job. I think this is done and dusted. What I'm trying to say is a counter back rally. Okay, so a counter back rally from this late downtrending channel to a one more counter back rally to meet this over here and again drop. So IT में जो relative आउट परफॉर्मर्स हैं विद इन दी पीयर ग्रुप उनको निकालिए, उनके चार्ट को इवेल्युएट करेंगे एंड दोज सेलेक्ट फ्यू काउंटर्स विल बी द डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन दी आईटी। ऑटो में अगेन हैवी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ऑटो में लोगों ने बहुत ऊपर में भी परचेस किया, अगेन वेरी बैड थिंग, ऊपर ऊपर में परचेज नहीं करना है। फार्मा इज सॉर्ट ऑफ नॉट लुकिंग वेरी गुड, नॉट लुकिंग वेरी बैड ऑल्सो। आई थिंक फार्मा में ठीक है, कुछ नहीं है, नथिंग मच। मेटल्स में आई थिंक एक जो है रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस हिट हो चुका है मेटल्स में, बट अगेन ये बाय ऑन डिप सेक्टर अभी भी रहेगा एंड वी विल लुक टू बाय ऑन डिप मेटल्स। एक सिग्निफिकेंट करेक्शन पे इसे डेफिनेटली बाय करना चाहिए। बाकी कोई भी सेक्टर मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। ओके, नथिंग वेरी ग्रेट एज सच। ओके, ठीक है, आपकी क्वेरीज लेते हैं एंड लेट अस सी हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदांता। आई सी दैट एज अ टॉप क्वेरी राइट नाउ। सो वेदांता लिमिटेड, फ्रेश बाय करने के लिए थोड़ा रुको, अभी मे बी 347 एक्सेट्रा आता है तो इसे किया जा सकता है। वेदांता is a very very strong counter. I've said before also that Vedanta has a lot of room to go on the upside and it is nothing. Vedanta अगर आपको somewhere if you can get near say 355 is a very strong support. ठीक है, it is trading at 373. What I would suggest is buy at 355 इसके आसपास, इस रीटेस्ट पे यहाँ कहीं बाय करो, बट आपका स्टॉप लॉस दोस्त बहुत दूर है। 328 का स्टॉप लॉस है, बाय नियर से 355 360, स्टॉप लॉस 328, टारगेट विल बी एट 420। so Vedanta, I'm very bullish on Vedanta. We got first breakout here, we are breaking out second time here, third time will be the charm। अगर third time ये करता है breakout then it is not going to stop till 420 and 450। वेदांता में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें हो सकता है कोई बड़ी न्यूज़ आए, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन और आई डोंट नो मर्जर एक्सेट्रा, बट इसमें डेफिनेटली कुछ तो बात है बड़ा। And historically, if you look at the charts, 495 has been the all-time high. So I think we are heading towards 495 eventually. तो वेदांता में अगर आप कैश मार्केट में आराम से प्ले करोगे तो दोस्त डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। एफएनओ में थोड़ा सा इश्यूज हो जाएगा। सो बाय ऑन डिप मेंटेन रखिए। 355 360 अच्छा जोन है, 328 अच्छा स्टॉप लॉस है, 420 450 ये पहले टारगेट्स होंगे वेदांता में। सो वेदांता हो चुका है। नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स। ओके, अदानी पोर्ट्स में देखो शॉर्ट इस समय करना बहुत रिस्की है, गलत सीजन, गलत टाइम फ्रेम है बेसिकली। सो इफ आई लुक एट द वीकली चार्ट, आई डोंट थिंक यू शुड शॉर्ट एज ऑफ नाउ। 680 का लेवल ध्यान देना, दैट इज अ लास्ट सपोर्ट। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो भी आई वुड नॉट रिकमेंड शॉर्टिंग। टेक्निकली उसके नीचे वीक है, बट व्हाई आई एम सेइंग नॉट टू शॉर्ट इज बिकॉज 10th March you will have the election result. Now that is something going to be very closely watched in the Adani camp from next 5 to 10 years perspective. And if I look at the long term chart, I think Adani is still very very good. I think it's a sign of a very good something which is going on.
एंड आई थिंक 680 इज अ वेरी गुड जोन। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा किसी को पैनिक में अगर अदानी मिलता है, अदानी पोर्ट, और अगर आप थोड़ा बड़ा 600 रुपये का स्टॉप लॉस अगर आप सहन कर सकते हो, तो आपको इस स्टॉक को लैप अप करना चाहिए। ये चीज़ सिर्फ इन्वेस्टर के माइंडसेट से मैं बता रहा हूँ। व्हाट माय लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। Look at these two candles. It's a wide range bar, so I'm not expecting Adani to break this or break that. ठीक है, यानी 600 से 900 के दायरे में ये एक निश्चित एक मूव देगा। तो 600 से 900 जो है कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, सो ये चीज़ है। ओके, एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट, सी एशियन पेंट हैज क्रैक्ड। ओके, सो एशियन पेंट एक अच्छे सपोर्ट पे था। अच्छा हुआ कि इसमें हमने वेट करने की बात करी, नहीं तो एशियन पेंट पे फंस जाते हैं। सो एशियन पेंट, आई थिंक द क्रूड इम्पैक्ट इज finally weighing on Asian Paint. So just wait, don't venture into this. Okay, already you have all the head and shoulders on all the charts, so don't venture। अगर आप इसमें फंसे हैं तो try, some pullback etc comes, एक बार थोड़ा निकल जाओ, give it some time। Okay, we will definitely get a good trade। So that's the view on Asian Paint. It has broken badly, one thing I can assure you। Two things can happen. Number one, the top is done। Second, best case scenario, it will go 2558 and then it will पकाओ for long long time। so ये 2550 से लेके 2950, ये 400 में बहुत हफ्ते रोटेट कर सकता है। ठीक है, so what I'm saying is something like this। ठीक है, ये बॉक्स, so यहाँ अगर मिले तो प्रॉब्लम मैं बाय करने को कुछ कहूंगा, बट नॉट इंटरेस्टेड एज ऑफ नाउ। एक बहुत बड़ा मैसेज, क्या है ये मैसेज? सर एक बात पूछनी थी, बहुत लंबा मैसेज था, एक नींद आ गई मुझे। रोज वीडियो देखिए, सारी चीजें आपकी सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एसआरएफ एसआरएफ देखो, एक अच्छा काउंटर है। ठीक है, एसआरएफ, बट आई थिंक थोड़ा रुको, अभी इसमें कैपिचुलेशन होने दो। अभी ये एक अच्छा ड्रॉप अगर दे दे तो एसआरएफ में जो है हमें 2000 का एक अच्छा बेस है, एंड आई थिंक 3000 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। सो कीप एन आई ऑन एसआरएफ। ओके, इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टॉक। बहुत लंबा ये चला है, एंड what you can see here is what you can see here is a repeat of this। ठीक है, so you will see a repeat of mostly this over here, and then as usual the next rallies। so ये स्टॉक बहुत ही डेडली काउंटर है बॉस, वेरी वेरी डेडली काउंटर। सो इसमें अगर आप साल भर में 5 स्विंग्स भी करेक्ट अगर आप खेल लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान स्ट्रेटेजिक। ठीक है, सो अभी वेट करते हैं, थोड़ा आने दो इसे, 200 डे मूविंग एवरेज आने दो, 2000 के आसपास अगर आता है तो ठीक है। ओके, डॉक्टर रेडीज समझा चुका हूँ लास्ट वीक, देयर इज नो ट्रेड, बेरिश हो चुका है, क्रैक हो चुका है डॉक्टर रेडीज। फार्मा में मत घुसो, क्यों एंटर कर रहे हो फार्मा में, कोरोना जा चुका है। ठीक है, सो इट्स बेरिश, निकलना शुरू करो, नहीं तो देखते देखते लूपिन और फार्मा एंड ऑल दीज काउंटर्स जैसा हाल हो जाएगा। सो इट इज ब्रोकन बैडली। सीमेंट स्टॉक में कौन सा सीमेंट स्टॉक, प्लीज थोड़ा बताएं। सीमेंट में सारे सीमेंट स्टॉक्स क्रैक हो चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत का भरोसा, मिस्टर मुकेश अंबानी। सो आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द बेस्ट बेट। 2250, 2300, I've told so many times to buy, and even last week you got a precise bottom 2243 and again jump। I think go with Reliance, that is your best bet, and I think Reliance should bottom out in the next 1 month cycle, and if everything is good then Reliance should go towards 3000 level। अंबुजा सीमेंट की बात करेंगे, तो अंबुजा एसीसी, द ट्विन सीमेंट पैक, बोथ ब्रोक वेरी वेरी बैडली लास्ट 10 days। और इनका तो देखो यही बात है कि इनके जो फिक्स लेवल होते हैं ये उसी लेवल पे चला करते हैं। तो अंबुजा सीमेंट
आई थिंक और गिरेगा, 260 वगैरह, थोड़ा 10-20 रुपया और गिरे, यहाँ पे कुछ अगर बने, यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू करे तो ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है इनका टॉप बन चुका है। आई थिंक दे हैव मेड अ टॉप नाउ। if they have made a top, then what can happen is a counter back rally, and then typical zigzag, typical these things, see, कई महीनों तक. So I think they are done and dusted. So next time it's best to exit them or keep them for your trading bets. ये भी अच्छा तरीका है, ट्रेडिंग बेट इसमें अगर खेलें तो ये भी काफ़ी ठीक अप्रोच है. ओके, सो दैट्स द व्यू ऑन अंबुजा. अभी तो मेरे ख्याल से गिरना चाहिए, 10-15 रुपए अभी और गिर सकता है, 260 अच्छा लेवल है. नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है नेस्ले इंडिया. सी, नेस्ले इंडिया इन्वेस्टर स्टॉक है, और लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तब तो बेरिश था, बिकॉज या सो इट वाज बेरिश एंड आई सी दैट इट हैज फॉलन टू 17,000. सो बेरिश काउंटर दोस्त, अभी इसमें डेथ क्रॉस होने वाला है. सो डेथ क्रॉस जब होता है तो अंडरटेकर आता है तो थोड़ा बाउंस आएगा, बट इट इज बेरिश काउंटर. ठीक है, इवेंचुअली इट विल गो टुवर्ड्स 16,000. अदानी एंटरप्राइज जो है शॉर्ट किया है आपने, अदानी एंटरप्राइज एक बार चेक करते हैं. अदानी इंटरप्राइज ठीक किया है, शॉर्ट किया है, ठीक है, बट थोड़ा सावधान रहना. बाबा जी आ गए तो फिर ये सब भाग जाएंगे. सो और लग साथ दिया तो 1450 का आंकड़ा भी टेस्ट हो जाएगा. सो इट जस्ट 50-50. शॉर्ट किया है तो 1717, ये जो हाई था पिछले साल का जून का, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए लास्ट टू लास्ट. एंड इफ यू, मेरी सलाह ये होगी कि इफ यू गेट अनदर डिप, ट्राई टू बुक आउट. ओके, या तो बड़ा मिलेगा या तो फिर पूरा 1717 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. सो इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिट तो उसे लॉक करना मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित होगा. टाटा मोटर्स की बात करें तो जैसा कि वेडनेसडे को डिस्कस किया था कि वाइड रेंज कैंडल बना था पैनिक में, तो वापस जाएगा. सो इट इज कमिंग बैक अगेन हियर. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन. ये एक कैंडल से आपको कितनी नॉलेज मिल सकती है चार्ट्स के बारे में. सो अगेन नीचे जाएगा, अभी 398 400 आने दो. आई वुड लाइक टू सी, फॉर अ टेक्निकल ट्रेडर आई वुड लाइक टू सी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसा मुझे दिख जाएगा तो यहाँ पे हम बाय करेंगे. ये हमारा स्टॉप लॉस होगा. पहला टारगेट होगा ये गैप. ठीक है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आएगा. वन मोर पुल बैक हियर, द लॉस्ट ग्राउंड that will try to regain just like Mr. Putin is doing, and then the assault. ठीक है, and then again major hurdle, और यहाँ पे इसे ब्रेक करके फिर ये भागा जाएगा. सो ये सीक्वेंस होगा. सी, दिस इज हाउ यू विजुअलाइज द चार्ट्स कि ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, और ये आप एक प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करके चलते हैं जो लगभग मैं समझता हूँ 75 to 90 भी, समटाइम्स तो 100% भी वैसे हो जाता है, बट एक ऑन एन एवरेज आई थिंक 75% इसी तरीके से जिगजैग चलते हैं बाजार में. ठीक है, सो विजुअलाइजेशन जो है ये आपको सीखना पड़ेगा. ये आप कैसे सीख सकते हो? आप रोज़ दिन में कम से कम 20 चार्ट को आप प्रैक्टिस करो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, and you will see that how your visualization technique, it becomes superlative in nature. ठीक है, विप्रो की बात करते हैं. बहुत बढ़िया क्वेरी. आई वॉज वेटिंग फॉर समबडी टू आस्क विप्रो बर्जर पेंट. अच्छी क्वेरीज हैं ये. बिलियनियर क्लब कहते हैं कि ग्रेट एनालिसिस ऑलवेज. यू आर फ्री स्ट्रीमिंग. यस, इट इज़ ऑल फ्री. देर इज़ नो लिंक टू ज्वाइन एनी ब्रोकर अकाउंट और फलाना फलाना सब चिंदी चोरी वाला काम मैं करता ही नहीं हूँ. हमारी शान के खिलाफ है. ठीक है, विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो जो है, विप्रो ये आज चेक तो नहीं किया था मैंने, बट मुझे ऐसा सपना आया था कि ये भागेगा. सॉरी, ऐसा कोई सपना नहीं आया था. विप्रो, विप्रो जो है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग कंटेंडर है, एंड आई थिंक विप्रो बाय करना चाहिए. ठीक है, सो 522 का एक अच्छा सपोर्ट है. आई थिंक विप्रो बाय करना चाहिए. वी हैव सीन अ कंसोलिडेशन एंड एफर्ट टू कैपिचुलेट on a rising volume that got failed, and now we have defended back and we are क्रॉसिंग दी रेजिस्टेंसेस. सो पूरी वॉर लाइक सिचुएशन है. ये अमेरिका था, इसने सोचा मैं इसे गिरा दूंगा, बट ये फ्लॉप शो हो गया.
तो ये अब ऊपर जाएगा। सो आई थिंक विप्रो बाय ऑन डिप करें। 522 का 530 वगैरह का स्टॉप लॉस ठीक होगा, बाय ऑन डिप। एंड ओवरऑल फर्स्ट टारगेट आई वुड लाइक टू सी इज द रीच ऑफ से 630 जाए तब देखेंगे। इवेंचुअल टारगेट गैप फिलिंग होगा, बट ये डायरेक्ट शॉर्ट्स में जाना बहुत ही कठिन है, ठीक है, क्योंकि मार्केट डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर में है। सो मैं समझता हूँ पीस बाय पीस सही होगा। 530 से एक राउंड ऑफ से 630 से अगेन मे बी 610 और 580, देन सेकेंड राउंड में मे बी 680, दैट्स इट। ये टेक्निकल ट्रेड है दोस्तों, लेट मी जस्ट रीआइट्रेट, ये टेक्निकल ट्रेड है, ये कोई मैं ऐसे ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं बता रहा हूँ। ये ट्रेंडिंग ट्रेड अब होंगे भी नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल मूव्स होंगे 10% 12% के स्लैब में। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैसेज, देख के बहुत अच्छा लगा। एस्कॉर्ट्स इस जीत सारे मेरे स्टूडेंट्स क्वेरी पूछते हैं। नवीन फ्लोराइन जो है, एक बार इसको चेक किया जाए। नवीन फ्लोराइन जो है, चर्चा हो चुकी है स्टॉक पे कि इसे आने दें और नीचे आने दें। आई एम वॉचिंग दिस थिक ग्रीन लाइन. Okay, so let it come down here. So why I'm watching this stock is because of two things. Number one, you had the previous resistances that acted as a support. Last time यहाँ पे हमने buy भी दिया था इसमें, and then acted as support. So potentially it will act as support. Then you have this declining line which acted as a resistance. So now breakout, retest will act as a support. तो कहने का मतलब है कि दोनों मिला के एक potential support देगा, ठीक है, यहाँ कहीं। उसके बाद ये चले तो फिर इसे मैं बाय करूंगा। अगला टारगेट बहुत बड़ा है इसमें, अगला टारगेट बहुत बड़ा है। ये स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है। बर्जर पेंट की बात करते हैं दोस्तों। लाइव स्ट्रीम क्रॉस हो चुका है 1 घंटा 10 मिनट और 200 लाइक आज चाहिए। 200 लाइक अगर नहीं आए इस वीडियो पे तो मैं 200 दिनों तक लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा। ओके, 653 डबल बॉटम स्ट्रक्चर विद अ लॉन्ग कह रहा हूँ, विद अ बिग वॉल्यूम। सो एज ऑफ नाउ तो इसे लॉन्ग मैं नहीं सलाह दूंगा। टेक्निकल पुल बैक डेफिनेटली आ सकता है 50 पॉइंट का, बट एज अ लॉन्ग ट्रेड आई थिंक इट इज टू अर्ली। वाई इट इज टू अर्ली? बिकॉज इफ यू लुक एट दी if you look at the monthly chart of this stock, then I will wait for the previous all-time high, which was 600, to come here, and then I will start the next planning. क्योंकि देखिए जो प्रीवियस टॉप्स होते हैं मंथली पे, ठीक है, यहाँ जब वापस आता है तो वहाँ एक बॉटम बनता है, देन सम कंसोलिडेशन हैपन एंड देन द न्यू ट्रेंड अकर्स। सो ये जो कंजर्वेटिव स्टॉक्स होते हैं, कंजर्वेटिव स्टॉक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीज स्टॉक्स आर फ्रॉम द कंजम्पशन स्टोरीज। इनमें यही पैटर्न चलता है हर समय, लॉन्ग टर्म में यही पैटर्न चलती है इनकी। सो दीज आर वेरी सेफ एंड सिक्योर टाइप ऑफ स्टॉक्स। तो इसमें यही अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ। ब्रिटानिया हो गया, ब्रिटानिया में भी देखिए यही चीज़ आपको बताई मैंने। सो बर्जर पेंट्स अभी तो कोई ट्रेड नहीं है दोस्त, टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है 705 710 तक। ओवरऑल 600 का वेट करेंगे, 600 पे जिस दिन आएगा तब इस पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लास्ट स्टॉक फॉर टुनाइट, एक स्टॉक और लूंगा एंड देन वाइंड अप करेंगे। मुझे कुछ एस्कॉर्ट्स दिखाई दे रहा है। टेक महिंद्रा पे भी क्वेरी है तो शॉर्ट में कवर करते हैं। एस्कॉर्ट जो है इस समय नहीं, एस्कॉर्ट को तो आई थिंक मैंने कुछ वार्निंग भी दी थी थोड़े दिन पहले, दैट सम ब्रेकआउट विल हैपन और सम फॉल विल हैपन, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो गया था। आई थिंक एस्कॉर्ट जब तक ये 1918 का लेवल नहीं होता, आई थिंक मैं इसमें बेरिश रहूँगा। वाई? बिकॉज आई एम सीइंग अ स्मार्ट हेड एंड शोल्डर, अ वेरी स्मार्ट हेड एंड शोल्डर। Okay, so there is a risk, plus you have such a high volume bar over here. So इसका हाई था लगभग 1830 और उसके बाद ये मात्र 80 पॉइंट गया है। यानी जो प्रमोटर है इसने अच्छा यूटिलाइज किया इसे बेचने के लिए, और कितने दिन कंज्यूम किए देखो। सो बेरिश, बेरिश काउंटर जब तक 1920 क्रॉस नहीं होता, बेरिश काउंटर है। सेल ऑन राइज मार दो, छोटा रिस्क है, बड़ा टारगेट मिल जाएगा।
अगली क्वेरी मुझे जो दिखाई दे रही है वो है मारुति की। सो मारुति, लास्ट टाइम मैंने आपको सजेस्ट किया था कि और गिरावट हो तो 7,300 400 वगैरह मिले, 500 मिले तो यहाँ पे थोड़ा रैपअप करना चाहिए। डायरेक्ट ब्रेक हो चुका है। जिन्होंने बाई किया है कैश में वो तो ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और जा सकता है, बट आई थिंक यू आर सेफ। और टेक्निकल ट्रेड के लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल ट्रेड के लिए रुकना पड़ेगा। आई थिंक 7,000 7,100 दीज आर गुड लेवल्स फॉर कैश, नॉट फॉर टेक्निकल ट्रेड। टेक्निकल यानी एफएनओ ट्रेड के लिए तो बिल्कुल भी ना ना, नॉट एट ऑल। एडीएफ फूड्स एक क्वेरी है। एडीएफ फूड्स लिमिटेड, टोटल डेड काउंटर, ठीक है, टिपिकल काउंटर है जहाँ पे डंपिंग हुई है, सो बार बेरिश काउंटर। आई थिंक दैट्स ऑल। एक आखिरी क्वेरी मैं जो ले रहा हूँ वो है एस एन एल बेरिंग्स एंड देन लेट्स वाइंड अप, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो चुका है। सो एस एन एल बेरिंग्स इस समय दोस्त मेरे ख्याल से बेरिश है। सो जस्ट ट्राई टू एग्जिट। 240 पे आएगा तो एक बार हम इसे वापस बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक you so much for watching. This week is very crucial for the markets, both in terms of politics, then the geopolitics, then the crude oil, USD INR. बहुत ज़्यादा सॉलिड हफ्ता है, कुछ ना कुछ धमाकेदार तो इसमें होना ही है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। और दूसरी बात कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए एज अ बैकअप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, all those who are interested to learn from me, you have one last opportunity coming on March 12th and 13th, which is next weekend. आप रजिस्टर कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, एंड देन यू विल बी इन अवर ग्रुप। दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, जय माता दी।